Good morning, everyone. Today we are going to continue exercise 10.2. Till now, we have completed 9 questions of this exercise, and today we are going to start with the 10th question. I hope you all will be able to do the question yourself because we have done this question earlier also. The question is, your 10th question of the exercise is, if you have a circle and from an external point you have two tangents, then the angle between the tangents and the angle subtended by the point of contacts at the center, by the radii which are at the point of contact at the center, these two angles are supplementary. Supplementary means we have to who is here with the unknown name? Please rename yourself with your own name, please. चलिए सप्लीमेंट्री का मीनिंग बताइए तब तक. लेट मी नो द नेम, let me know the number. What is the sum? What do we mean by supplementary angles? We have to prove that these two angles are supplementary. What does it mean? Let this point is A, this is B, this is P, and this is O. Who is Ram in the class? Yes, we have to prove that their sum is 180 degree. So we have to prove that the sum of these two angles is 180 degree. How will we prove? What will be the measure of this angle? ये कितने डिग्री का होगा? What will be the measure of this angle B? $90 degree, right? Similarly, this angle will also be 90 degree. Why? Reason is the angle between the tangent and the radius at the point of contact is 90 degree. So this angle is 90 degree. This angle is also 90 degree. And this is a quadrilateral AOBP. So the sum of all the angles of the quadrilateral is 360. Out of 360, these two angles are 180 degree. The remaining two angles will be of 180 degree. Question will be done, right? So theorem में आपको इसमें पूरा लिखना पड़ेगा. You will have to mention what is given. Given में क्या लिखेंगे? Given में आप लिखेंगे a circle with two radii OA and OB and two tangents PA and PB. To prove में आप लिखेंगे angle P plus angle O is equal to 180 degree, right? Proof में आप सबसे पहले लिखेंगे result. As we know that the tangents drawn from a point to a circle are of, sorry, ये तो दूसरा result आ गया. As we know that the tangent and radius are perpendicular to each other at the point of contact. So point of contact के ऊपर अगर ये perpendicular है, so angle B is equal to angle A is equal to 90 degree. Then you will apply angle sum property in triangle in quadrilateral. Your quadrilateral here is PBOA, right? Angle P plus angle B plus angle O plus angle A is 360 degree. आप values put कर लीजिए B और A की. At the place of B we have 90 plus O plus A is also 90. This is equal to 360. So आपके पास P plus O कितने डिग्री का आ जाएगा? 90 plus 90, 180. Shift this 180 on the other side. 360 minus 180 will be 180. So you will get angle P plus angle O is equal to 180 degree. Hence, angle P and O are supplementary. Clear? Shall I proceed to the next question? Clear है सबको? At least mention. Next of your question is prove that parallelogram circumscribing a circle is a rhombus.
नाउ यू आर गिवन पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है और पैरेललोग्राम भी है। इससे आपने पहले एक क्वेश्चन आया था, उसमें हमें दिया हुआ था क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ ऑपोजिट साइड्स। उस केस में आपने क्या प्रूव की थी कि उनका सम इक्वल होता है। नाउ दे आर सेइंग कि ये जो क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा है, दिस इज अ पैरेललोग्राम आल्सो, राइट? So we are taking the parallelogram to be A, B, C, D and we have to prove that this is a rhombus. Rhombus अगर prove करना है, that means what we have to prove? जल्दी बताओ, रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो मैं कंटिन्यू नहीं करने वाली हूँ। What we have to prove it to be a rhombus? अरे ओके, ठीक है, replies are here. Both the diagonals are equal, opposite sides are parallel. अनम्यूट तो मैं नहीं कर रही हूँ आज, लक्ष्य। चलिए, we have to prove that this is a rhombus. rhombus के लिए हम प्रूव करेंगे इसकी adjacent sides क्या हैं, इक्वल हैं। उसको इक्वल प्रूव करने के लिए देखो, इसमें हम रिजल्ट ये यूज करने वाले हैं कि ये जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था कि अगर ये सिंपल क्वाड्रिलेटरल है तो इसके आमने सामने वाली साइड्स का सम क्या है, सेम है। इसमें पहले हमें वो थ्योरम प्रूव करनी पड़ेगी, राइट? वो थ्योरम करने के बाद आपके पास आ जाएगा AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। यही आपने किया था क्वेश्चन नंबर, कौन सा था आपका, दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 8th क्वेश्चन में आपने ये रिजल्ट किया था दैट AB plus CD is equal to AD plus BC. Now they are saying this is a parallelogram also. If this is a parallelogram, opposite sides will be equal. That means AB और CD क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, right? So at the place of AB we can write CD, या CD की जगह पे आप AB लिख लो। AB plus CD की जगह पे मैं कह रही हूँ मेरा सेम है AB, तो मैंने AB plus AB कर दिया। दिस इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू BC है, तो आप किसी की जगह पे, क्योंकि दोनों सेम है, AD इज इक्वल टू BC, सो आप या तो BC की जगह AD लिख दो या AD की जगह BC लिख दीजिए। यू विल गेट AD प्लस AD। आई हैव यूज्ड BC इज इक्वल टू AD, राइट? कौन सा रिपीट करना था अंश, एक बार बता दो। इट विल बी डबल ऑफ AB इज इक्वल टू डबल ऑफ AD। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया AB इज इक्वल टू AD। दो साइड्स इक्वल हो गई, ठीक है। अगर ये दो साइड्स इक्वल हो गई, बाकी हम कह देंगे सिमिलरली AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD, ऑल साइड्स आर इक्वल, सो दिस इज अ rhombus। हुआ क्लियर अंश? विच वन? दिस वन ओनली, ओके। देखो दोबारा से कर लो, आपके पास गिवन है पैरेललोग्राम जो इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, पैरेललोग्राम है, कंडीशन इज दिस इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल भी है, ठीक है। तो हम इसमें सबसे पहले रिजल्ट यूज करेंगे कि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर ऑफ इक्वल लेंथ, सो लेट वी टेक द पॉइंट्स एज P, Q, R एंड S। तो A पॉइंट से हमारे पास AP और AS दो टेंजेंट हैं, so we can write AP is equal to AS. Now similarly from point B, okay, BP और BQ ये दोनों सेम हैं, so we will take BP is equal to BQ क्योंकि ये B पॉइंट से टेंजेंट है। Similarly from point C we have two tangents CR and CQ, तो यहाँ पे लिख लो आप CR is equal to CQ। Similarly D पॉइंट से दो टेंजेंट्स DR is equal to DS, ठीक है। ये चार हो गई, फिर हमने क्या किया था, इन चारों को ऐड किया था। जब आप ऐड कर रहे थे तो AP प्लस BP मिला के आपका बन गया था AB, राइट? सो AP प्लस BP ये ऐड हुआ, बना AB। CR प्लस DR will give you CR plus DR, it will give you CD. This is equal to BQ plus CQ is BC and AS plus DS will be AD, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने इसमें प्रूव करना है ये, राइट? आफ्टर दिस वी से
कि हमारा ये पैरेललोग्राम है. इफ इट इज अ पैरेललोग्राम then opposite sides will be equal, but AB is equal to CD and AD is equal to BC because ABCD is a parallelogram. So opposite sides are equal. तो ये रिजल्ट हम पुट कर रहे हैं इसमें. AB प्लस CD की जगह पे भी AB पुट कर रही हूं मैं इसमें. CD की जगह पे मैंने लिख दिया AB क्योंकि ABCD इक्वल है. दिस इज इक्वल टू BC प्लस AD किसके इक्वल है? BC के. तो इसकी जगह पे पुट कर दिया BC. राइट नाउ दिस इज डबल ऑफ AB इज इक्वल टू डबल ऑफ BC. 2 से आपने 2 कैंसिल कर दिया. व्हाट यू विल गेट? AB इज इक्वल टू BC. राइट, दो एडजेसेंट साइड्स AB और BC इक्वल आ गई. अब बाकी हम लिख देंगे सिमिलरली. BC is equal to CD is equal to DA is equal to AB. That means ABCD is a rhombus. Hence the question is done. ठीक है, अब हो गया क्लियर? अंश हो गया, क्रिश हो गया, सेजल, समीक्षा. चलिए, come to the next question now. Your next question is a triangle ABCD is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter. Now triangle is there with us, which is circumscribing the circle such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 centimeter and 6 centimeter. You are given the figure. This is the circle और एक आपके पास यहाँ पे given है triangle which is circumscribing the circle. And here, ठीक है, this is the triangle and the points are A, this is B and C, and this point D is dividing this line BC into 2 segments and their length is 6 centimeter and this is 8 centimeter. Right, we have to find out the sides AB and AC. आपने ये साइड और ये साइड फाइंड आउट करनी है. आपके पास ये साइड गिवन है, एक साइड गिवन है, आपने दूसरी फाइंड आउट करनी है. राइट, ओके, बाकी 2 साइड्स आपने फाइंड आउट करनी है. लेट वी कंसीडर द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एज P एंड Q. ठीक है, इसमें इस पॉइंट से ये 2 रेडियाएं हैं. सो अगर ये आपकी 6 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो गई? 6 सेंटीमीटर. इफ दिस इज 8 सेंटीमीटर, ये भी हमारी क्या हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर. अब जितनी ये है उतनी ही ये है बिकॉज AP एंड AQ आर 2 टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट A. AP और AQ की वैल्यू अगर मुझे मिल जाए, इफ आई गेट दिस वैल्यू, 6 में प्लस कर दूंगी तो ये भी आ जाएगा, इसमें प्लस कर दूंगी तो ये आ जाएगा. राइट, तो मेरे पास सिर्फ एक काम रह गया, या तो AP या AQ की वैल्यू फाइंड आउट करना. सो आई एम एज्यूमिंग दिस टू बी X. अगर ये X है तो दूसरा भी X हो गया. राइट, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज I am going to find out the area of this triangle by 2 different formula. ठीक है, इनको इस ट्राइंगल का फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं और उसके लिए पहले मैं इस सर्कल का सेंटर ले रही हूँ. सेंटर से मैंने A, B और C को ज्वाइन कर दिया. राइट, अब यहां से मैं इस पॉइंट को अगर ज्वाइन करती हूँ तो ये एंगल मेरा 90 डिग्री बनेगा. ठीक है, क्योंकि ये रेडियस हो गई, ये मेरी लाइन हो गई, टेंजेंट हो गई. राइट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रेडियस एंड टेंजेंट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. क्लियर, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री. अब इस ट्राइंगल का आप करोगे फाइंड आउट एरिया. अगर इसका एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और इसी तरह से 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. रेडियस भी गिवन है क्या इसकी? नहीं, रेडियस तो नहीं है गिवन. सो वी विल हैव टू टेक इट्स वैल्यू. हमें इसको अपनी मर्जी से कुछ भी एज्यूम करना पड़ेगा. लेट दिस इज इक्वल टू A. ठीक है, अब इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर रही हूँ मैं. ट्राइंगल
area of triangle OBC, 1/2 into base into height, so this will be equal to 1/2 multiply base हमारा हो गया 6 plus 8, इसको r ही ले लो because this is radius, तो इसको r ही रहने देते हैं. So 6 plus 8 is 14 into r, that means this is 7r. इसी तरह से आपका इस ट्राइंगल का एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल OBA इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई, यहां से आपने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, फिर से परपेंडिकुलर हमारा किसके इक्वल हो गया, रेडियस के, और बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 6 plus x, सो 1/2 into 6 plus x मल्टीप्लाई r, ठीक है, एंड देन इसको तो आप एज इट इज रहने दोगे, ये आपका 6 इधर है, ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस इज AC, AC आपका कितना हो गया 8 plus x मल्टीप्लाई r, ठीक है. और अगर आपने पूरा एरिया फाइंड आउट करना है ट्राइंगल ABC का, तो पूरा एरिया आप इन तीनों ट्राइंगल्स को ऐड करोगे तो आपके पास पूरा एरिया आ जाएगा, राइट, दैट विल बी 7r plus 1/2 into 6 plus x multiply r plus 1/2 multiply 8 plus x multiply r. दिस इज इक्वल टू, आप इसमें से r ले लो कॉमन, और अंदर रह गया आपके पास 7 plus 6/2 plus x/2 plus 8/2 plus x/2, ठीक है. Now this is r, 6/2 is 3, this is 4, 4 plus 3 7 plus 7 is 14 plus ये हो गया x/2 plus x/2, x नहीं, हाँ, x/2 plus x/2 आपका कितना हो गया 2x/2, 2x/2 मीन्स ये हो गया आपके पास x, राइट, इतना क्लियर हुआ, ठीक है. उसके बाद अब आप निकालोगे इसका एरिया दूसरे फॉर्मूला से, दूसरा फॉर्मूला कौन सा, आपका पूरे ट्राइंगल का एरिया बाय हेरोन्स फॉर्मूला, रेडियस इज गिवन 4, ओके 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 ओके, रेडियस अगर 4 गिवन है तो यहाँ पे ये हो गया 4 into 14 plus x, ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा, राइट. अब आप निकालो एरिया फिर से हेरोन्स फॉर्मूला से, इसका एरिया हेरोन्स फॉर्मूला से कैसे निकलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ s, s इज a plus b plus c upon 2, सम ऑफ 3 साइड्स डिवाइडेड बाय 2, 3 साइड्स आपकी हो गई 14 plus 6 plus x plus this is 8 plus x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और ये किसके इक्वल हो गया 14 plus 14, 28 plus 2x divided by 2, that is equal to 14 plus x. क्लियर. अब आपने हेरोन्स फॉर्मूला अगर लगाना है तो उसके बाद आपका एरिया हो जाएगा अंडर द रूट s, s plus a, s plus b, s plus c. मैं इसको अलग से बना रही हूँ. This is 6, 6, 8, 8, x, x, right. अब आपके पास ये हो गया 14 plus x is s, s minus a, 14 plus x, इसमें से माइनस करना है 14, दूसरा 14 plus x minus 6 plus x minus करना है, so it will be minus 6 minus x, and in the third bracket we will have 14 plus x minus 8 plus x को आपने माइनस करना है, so it will be minus 8 minus x. यहाँ पर आपका x से x कैंसिल, x से x, 14 से 14 हो गया कैंसिल. Now this will be under the root 14 plus x, और बाकी रह गया आपके पास x, और यहाँ से 14 minus 6 is 8 and 14 minus 8 is 6, right. तो now अब ये भी एरिया है और ये भी एरिया है, दोनों एरियाज को आप क्या करोगे, एक ही चीज के पूरे ट्राइंगल के एरिया हैं, तो आप इन दोनों एरियाज को क्या कर दोगे, इक्वेट करेंगे. इक्वेट करेंगे तो ये आपका हो गया 4 into 14 plus x के इक्वल, अंडर द रूट 48 x 14 plus x is equal to 14 4 into 14 plus x, ठीक है. स्क्वायरिंग बोथ साइड,
स्क्वायर जैसे ही आप करोगे इधर से 48x रह गया और इधर से रह गया 14 प्लस x एंड ऑन द अदर साइड 4 स्क्वायर 16, 14 प्लस x का हो गया स्क्वायर, राइट। अब ये आपका एक टर्म हो गई कैंसल, राइट। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, 48x इज इक्वल टू 16 इंटू 14 प्लस x, राइट। इससे भी आप ये भी कैंसिल कर दो, 16 3 राइट। अब फटाफट से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ से, सो यू विल गेट 3x इज इक्वल टू 14 प्लस x। आंसर बता दो, x की वैल्यू कितनी आई, 3x माइनस x इज 2x 14, सो x कितना हो जाएगा आपके पास 7, ठीक है, समझ में आया। अगर x की वैल्यू आ गई 7 तो हमारे पास ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 प्लस 7, 6 प्लस 7 विल बी 13 और इधर से 8 प्लस 7 विल बी 15, right? So you will get the other two sides of the triangle. दोबारा से एक्सप्लेन करना है तो बताओ, yes please repeat, दोबारा से सुन लो, इरेज कर रही हूं मैं सारा। बेटा इसमें ना पहले हम स्टेप्स याद करते हैं कि मेरे पास ये ट्राइंगल है ABC एंड दिस इज पॉइंट DPQ। स्टेप्स ये हैं, इस पॉइंट को सेंटर को इधर इधर और इधर ज्वाइन कर दिया, राइट। यहां से ये ड्रॉ हुआ परपेंडिकुलर, इधर से भी परपेंडिकुलर और ये इधर से भी परपेंडिकुलर, राइट। मैं 3 ट्राइंगल्स का एरिया निकाल रही हूँ, एक तो इस ट्राइंगल का और दूसरा नॉट दिस, इस ट्राइंगल का, ठीक है, और थर्ड ट्राइंगल है मेरा ये वाला। ये 3 ट्राइंगल्स का एरिया मैंने पहले अलग अलग निकाला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से। फिर मैंने बड़े वाले ट्राइंगल का फॉर्मूला एरिया फाइंड आउट किया है बाय हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। इन तीनों एरियाज को अगर मैं ऐड करती हूँ तो मेरे पास बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। और हीरोन्स फॉर्मूला से भी मैंने बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकाला है, बट द एरिया ऑफ ट्राइंगल विल रिमेन द सेम, चाहे आप उसको किसी भी फॉर्मूला से निकालो। तो आपने दोनों एरियाज को क्या करना है, इक्वल पुट करना है। जैसे ही आप उन्हें इक्वल पुट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट। इसके लिए मैंने सबसे पहले इसका एरिया निकाला, OBC, एरिया OBC 1/2 इंटू बेस हो गया 14 प्लस हाइट, हाइट इसकी रेडियस है एंड द रेडियस इज गिवन टू यू 4, सो 1/2 इंटू 14 इंटू 4, राइट। ये आपने कैंसिल कर दिया, चलो रहने दो। फिर आपने निकाला एरिया ऑफ OBA, दिस इज 1/2, बेस अब यहाँ पे हो गया ये वाला और हाइट हो गई ये वाली। परपेंडिकुलर तो यही है, तो जो परपेंडिकुलर है वो हाइट है, परपेंडिकुलर रेडियस है, रेडियस 4 के इक्वल है, और ये आपकी हो गई 6 प्लस एक्स, 1/2 6 प्लस एक्स इंटू 4। यहाँ से भी आप 2 को कैंसिल कर दो, 4 को, ये आपका बच गया 28 और यहाँ से हो गया 2 6 12 प्लस 2x, हो गया। आपने 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से आपके पास आ रहा है तीसरे ट्राइंगल का एरिया OCA, दिस इज इक्वल टू 1/2, बेस ये हो गया, हाइट फिर से आपकी रेडियस 4 हो गई, सो बेस इज 8 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 4, कैंसिल किया, 2 8 16 प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स इज 2x। ये हमारे पास टोटल एरिया अगर आप फाइंड आउट करो ABC का, वी विल ऐड द 3, 28 प्लस 12 प्लस 16 56 हो जाएगा, प्लस 2x प्लस 2x 4x, इसमें से आपने 4 ले लिया कॉमन और ये हो गया आपका 14 प्लस x, राइट, क्लियर। ये हमारा टोटल एरिया आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी ट्राइंगल का दोबारा से एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं बाय हीरोन्स फॉर्मूला, राइट। अब हीरोन्स फॉर्मूला से फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास जो साइड्स बची हैं वो हैं 14, दिस इज 6 प्लस एक्स एंड दिस इज 8 प्लस एक्स, ठीक है। हम फाइंड आउट कर रहे हैं S मतलब तीनों साइड्स का सम और उसका हाफ, 6 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास ये बन जाएगा 28 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 14 प्लस x, ठीक है। अब आप फाइंड आउट कर रहे हो फिर से एरिया ABC का, दिस इज इक्वल टू अंडर द रूट S 14 प्लस x, S माइनस A 14 प्लस x माइनस 14
फिर आप ये माइनस करोगे 14 प्लस एक्स में से, क्योंकि माइनस कर रहे हो तो 6 प्लस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, माइनस एक्स, राइट, एंड इन द अदर ब्रैकेट 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स, राइट। इसको आपने करना है सिंप्लीफाई, आपके पास रह जाएगा 14 प्लस एक्स, यहाँ से ये कैंसिल हुआ, एक्स रह गया, यहाँ से आपका एक्स से एक्स कैंसिल हुआ, 14 माइनस 6 इज 8 एंड 14 माइनस 8 इज 6, ठीक है। इसको आपने एज इट इज रहने दिया, 14 प्लस एक्स इंटू 48x। अब ये भी एरिया है और आपका जो आया है ये भी एरिया है, इन दोनों को आप इक्वल करोगे। हाउ यू फाइंड आउट रेडियस? रेडियस तो बेटा इसमें क्वेश्चन में ही गिवन है, मैंने फाइंड आउट नहीं किया, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, रेडियस इज 4, ठीक है। ओके, टाइम इज गोइंग टू गेट ओवर, तो जल्दी से कर लीजिए। ये दोनों एरियाज को आपने इक्वेट करना है, इक्वल पुट करना है। आपके पास ये आ गया 4 इंटू 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट 14 प्लस एक्स इंटू 48x। आपने कर दिया दोनों साइड का स्क्वायर ताकि आपका रूट हट जाए, यहां से तो रूट हट गया 14 प्लस एक्स और ये रह गया 48x, एंड ऑन द अदर साइड जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे 4 स्क्वायर इज 16 एंड 14 प्लस एक्स का हो गया स्क्वायर, ठीक है। अब ये भी 14 प्लस एक्स ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एक कैंसिल हो गया, एक 14 प्लस एक्स आपका यहाँ रह गया, ठीक है। 16 से 48 कैंसिल, कैसे मैं कैंसिल कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ये सारे मल्टीप्लाई में हैं, अगर बीच में कहीं भी प्लस साइन होता तो मैं कैंसिल नहीं कर सकती थी। इसको आपने कैंसिल किया 3 से, ठीक है, 16 3 जा 48, नाउ दिस इज इक्वल टू 3x, 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे 7 आ जाएगी, अगर 7 आ गई तो ये वैल्यू, रेडियस इज नॉट गिवन इन द बुक, बेटे मेरे पास जो बुक है उसमें है अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट, तो 4 सेंटीमीटर रेडियस